Hello students, welcome back to my channel. This is Dipali and in this video you will learn about applications on NumPy array. So basically we will learn about variance, covariance and correlation in this video. So let's start the session. First thing which we will cover, that is what is variance. So variance is a measure of variability from mean. Fine. And we can also say that the variance measures the variation of a single random variable. That means आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो. हाइट है किसी भी एक पर्सन की एक पॉपुलेशन के अंदर, तो हाइट क्या होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. जैसे क्लास में भी किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकता है 5 फीट हो, किसी की 4 फीट 4.7 इंच हो. मतलब दैट मीन्स क्या है, सबकी हाइट वेरी करेगी. ऐसे स्टूडेंट्स के वेट भी वेरी करेंगे. तो दैट मीन्स वेरिएंस क्या है, वेरिएंस एक मेजर्स है जिसके अंदर हम वेरिएशन देखते हैं. कोई भी एक सिंगल रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करते हैं. क्लियर. सो जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, किसी भी पर्सन की हाइट या वेट एक पॉपुलेशन के अंदर निकालना. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएंस. सो द फंक्शन विच वी विल यूज इन NumPy फॉर द वेरिएंस इज var function. Fine. So the basic, what is the formula we are using for variance, that is x to base n minus x bar and whole की power 2 divided by n. So basically this is the formula for your variance. Fine. So now we are going to see the practical implementation of this particular variance. For that I am just opening Python IDE. So here I am opening the Python IDE. Within this basically I have to just take a new file. So I am in this particular file, the first line which we have to write, that is a simple line. We have to import the NumPy as np. Fine. And before that we can also write the comment. What we are going to do, we are just going to compute variance for the given data set. Fine. Given data set. So now as I told you, we have to import NumPy as simply np. I am just writing over here, and afterwards what we have to write, we have to take a data set. Fine. So here I am taking a data set variable. In this variable I have to store some values. So basically I am storing some values like 2, 6, 8, 12, 18, 24, 28 and 32. Fine students. So these values I have stored in the data set. Now what I have to do, I have to take one more variable for calculating the variance. So I am taking a variable having the name variance, and in this particular variable I am using var function. Fine. On the np object, NumPy array object, that is which we have imported NumPy package. So on the package we have to call one function, that is var. So var function हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है, NumPy के अंदर अवेलेबल है. इस वजह से ही हमने उसको NumPy पे कॉल कराया है. क्लियर. तो बेसिकली ये var करेगा क्या, var एक मेथड है NumPy का, ठीक है, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. अब ये करेगा क्या, ऑब्वियसली हमें वेरिएंस निकाल के देगा. तो हमें प्रिंट क्या कराना है, अब हम प्रिंट करा लेते हैं वेरिएंस. फाइन. इसको सेव कर लेते हैं. सेव मैंने कर दिया, सपोज test1 डॉट, या वेरिएंस है तो var डॉट py.
fine. Then I am just running this particular program. So the output which I got, that is 105.4375. so that is the variance which we got after computing this particular program. So what we have done over here, if we will see the programming window, what we have done, basically first we have imported the package numpy as np. This means that we reference the numpy module with the keyword np. Fine. So numpy reference module we have created with the help of np. Then we created a variable data set in which we have stored these particular values like 2 and all these kind of values we have stored, and then we get the variance of this data set by using the np.var data function. तो हम इस डेटा सेट का वेरिएंस कैसे निकाल रहे हैं, np.var से निकाल रहे हैं, और लास्ट स्टेटमेंट में हमने इसको क्या करा है, प्रिंट करा दिया. क्लियर. सो अगर बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें इसको, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले के अंदर होगा क्या, सबसे फर्स्ट ये जो काम करेगा ये कैलकुलेट करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन. सो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम अभी फ़िलहाल अपना जो फंक्शन है जो हमारा अवेलेबल है नंपाई एरे के अंदर, अगर हम इसे ना देखें, नॉर्मली अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको देखें, तो उसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको इन सारे जो डेटा सेट मैंने लिया था, 1 2 6 8 12 18 24 28 32, इन सबको क्या करना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालेंगे, आप जितने भी वेरिएबल्स थे उन सबको प्लस करोगे. ठीक है, जितने भी डेटा सेट के एलिमेंट्स थे आप उनको प्लस करोगे, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने नोटिस करा हो, जैसे कि लेट मी शो यू द प्रोग्राम विंडो, तो आप क्या करेंगे, ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डेटा सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप इन सब का सम निकालेंगे. ठीक है, तो इन सब का जो सम आएगा उसको आपको क्या करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है. अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका सम आएगा 130. फाइन. अगर हम इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सम आएगा वो आएगा आपका 130. फाइन. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखोगे यहाँ पे कितने हैं, 8, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से. क्लियर. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.25. क्लियर स्टूडेंट. सो यहाँ तक तो आपको लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है. हमें क्या करना है, हमने सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उसमें हमने एक वैल्यू मिली है हमें 16.25. नाउ वी टेक ईच एक्स वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट 16.5 फ्रॉम इट. दैट मीन्स जितनी भी वैल्यूज़ है ना आपकी, ये सारी क्या है, एक्स की वैल्यू है. क्लियर. आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है 16.25. वो आप कैसे करोगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 16.25. तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 14.25. सिमिलरली आप क्या करोगे, अपनी सारी वैल्यूज़ के लिए ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे. क्लियर. आप 6 माइनस 16.25 करोगे, देन आपका आ जाएगा जो आंसर है 10.25. देन 8 माइनस 16.25 करोगे, देन आपका आंसर आ जाएगा माइनस 8.25 एंड सो ऑन. जैसे ही आप ये सारा काम कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपको क्या करना होगा, देन यू हैव टू स्क्वायर ऑल दिस नंबर्स. फाइन. आपको इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स करने हैं, इन सारे नंबर्स के स्क्वायर करने हैं. बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंपली लिखना होगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, सपोज स्टूडेंट्स दैट विल बी, अगर हम यहाँ देखें हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 14.25 ना. सो अब हमें करना क्या है, इनका स्क्वायर करना है. तो हम जब जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी वो सारी किसकी हैं, माइनस की हैं. क्लियर. बट जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी. क्लियर. तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे माइनस 14.25 और उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर. ठीक है.
इसका स्क्वायर करना है, इसकी पावर लगानी है, ऊपर लगानी है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ऐसे ही कर करके सबका स्क्वायर करना है और इसके अंदर क्या करना है, आपको उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है और आपस में ऐड कर देना है। इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला इसका स्क्वायर आएगा, ऊपर 2 लगाना है, इसके साथ में 2 नहीं है, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर करने के बाद जो पर्टिकुलर आंसर आएगा, द आंसर यू विल गेट दैट इज अराउंड 843.5। फाइन। सो अब उस 843.5 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। वाई? बिकॉज आपके टोटल डेटा सेट्स कितने थे, 8 थे। तो उस पर्टिकुलर आंसर को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 105.4375। फाइन। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सम को सॉल्व कर पाओगे फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस। फाइन। सो बेसिकली हमें करना क्या है, प्रोग्रामिंग ने क्या करा, अब इतना बड़ा जो टास्क था कि हम पहले एक इन सब का सम करें, ठीक है। सम हमारे पास आया 130, देन हमने डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया, देन जितने भी डेटा सेट्स में से एलिमेंट्स थे उनमें से इस पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करो, देन इन वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालो, देन उन सबको सम करो, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस 8 से डिवाइड करो। तो इतना जो इतने सारे स्टेप्स थे, हम एक छोटा सा फंक्शन बना वेर, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, हमें फंक्शन याद रखना है वेर, और इसके ऊपर डेटा सेट को कॉल करा देना है। दैट मीन्स जितनी भी ये कैलकुलेशन थी वो सारी इसने ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दी और हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग का काम ही क्या होता है, हमारे जो टास्क होते हैं, जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उसको ईजी बनाना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएंस। So basically what you have to remember, you just have to remember where function in case of you are using with numpy। ये आपको ये फॉर्मूला बेसिस पे ये सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये फंक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हमारा है कोवेरियंस। कोवेरियंस में क्या है, देखो, कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबिलिटी, ठीक है। वेरिएबिलिटी मीन्स द सेम वेरिएंस ऑफ 2 वेरिएबल। वहाँ पे हमें क्या था, सिंगल वेरिएबल का वेरिएंस निकालना था, यहाँ पर अब क्या है, 2 अलग अलग वेरिएबल के बीच में रिलेशंस हैं। सो कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच 2 रैंडम वेरिएबल्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो दोनों आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से वेरी करते हैं। क्लियर? जैसे हमने ये बोला हाइट ऑफ अ पर्सन एंड द वेट ऑफ अ पर्सन इन अ पॉपुलेशन। अब हमने दोनों चीज़ें ले ली, हाइट और वेट, दोनों चीज़ें कंप्यूट कर रहे हैं पर्सन की एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे किसी की हाइट अगर 5.6 है, उसका वेट सपोज 70 kg है, दूसरे की भी हाइट 5.6 है बट उसका वेट जो है वो सिर्फ 50 kg है। तो हाइट के अकॉर्डिंग भी वेट्स क्या होंगे, वेरी करेंगे। ऐसा नहीं है जितने भी 5.6 हाइट के लोग हैं उन सबका वेट एक स्टैटिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कंप्यूट करेंगे, कोवेरियंस कंप्यूट करेंगे। तो फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे कोवेरियंस में वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, COV, देन ब्रैकेट्स। जब भी ये ब्रैकेट्स आते हैं तो बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं। क्लियर? सो इसकी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसका भी एक फार्मूला है जो आप लोगों की बुक्स में गिवन होगा, बट मुझे नहीं लगता कि हमें फार्मूलाज पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज जो फार्मूलाज हैं वो बेसिकली पूछे नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट नमपाई करते हैं एस NP, और यहाँ पर भी अब हम क्या कर रहे हैं, कोवेरियंस कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। किस में से कंप्यूट कर रहे हैं हम, कोवेरियंस हम कंप्यूट कर रहे हैं अब मैट्रिक्स में से, एंड कोवेरियंस वैल्यू निकालेंगे हम कंप्यूटेड कोवेरियंस मैट्रिक्स में से, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना लिख देते हैं कमेंट। अब हमने क्या करा, सेम इंपोर्ट करा numpy एज NP। इसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इस वेरिएबल पे हमने क्या करा, numpy के अंदर एरे लिया, np.array फंक्शन यूज़ किया, और इस एरे के अंदर हमने क्या ले लिए, कुछ एलिमेंट्स ले लिए। फाइन। वहाँ पर हमने डायरेक्टली डेटा सेट बनाया था, यहाँ पर हमने एक एरे फंक्शन यूज़ करा है, ठीक है, और इस एरे को एक x वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है। फाइन।
तो हम वैल्यूज़ ले लेते हैं फटाफट से, 4 5 देन 6 7 8 एंड देन 9। फाइन, तो ये वैल्यूज़ हमने ले ली है, एक एरे क्रिएट करा है। क्लियर, एरे का नाम क्या है यहाँ पे, x है। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम उससे पहले इस x की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। सो बाय दिस स्टेटमेंट इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, देन np डॉट array. Now in this particular array what we will do, we will take some more values like 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। फाइन, जस्ट जो हमने ऊपर वैल्यू ली है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे ले लिया मैंने। अब हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे y की वैल्यू को। फाइन, तो अब तक हमने क्या करा है, दो एरेज बनाए हैं और x और y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स के नाम से। फाइन, कोव मीन्स कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम np पे फंक्शन कॉल कराएंगे कोव, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द कोवेरियंस। अब हमें कोवेरियंस किसके बीच में निकालना है, x और y के बीच में निकालना है। क्लियर, कोवेरियंस हमें किसके बीच में निकालना है, x एंड y के बीच में। आपको अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना है कि आप क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हो, सो हियर यू कैन राइट कोवेरियंस मैट्रिक्स। फाइन, सो हियर यू कैन राइट कोवेरियंस मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स यू कैन प्रिंट ओवर हियर cove, then variable name mat. Fine, afterwards what we have to do, basically till here first we will check what is the output of this particular function. See, हमने दो मैट्रिक्स ली थी, इसने क्या करा, हमें दोनों मैट्रिसेस प्रिंट करा दी हैं। क्लियर, तो अगर आप वेरिएंस देखोगे, कोवेरियंस में बेसिकली चेक क्या करते हैं, हम इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को इस वाले इंडेक्स की वैल्यू से चेक करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। क्लियर, ये वाली वैल्यू है ना -7.5, तो ये क्या है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। अब हमें करना क्या है, इस वाली स्टेटमेंट को बेसिकली हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर जो होगी आपकी जो मैट्रिक्स है ना प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कोवेरियंस मैट्रिसेस। फाइन, तो ये प्रॉपर तरीके से अब आपको मैट्रिक्स दिख रही होगी अब यहाँ पर अपनी। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, कोवेरियंस मैट्रिक्स प्रिंट करानी है और कोवेरियंस वैल्यू निकालनी है कोवेरियंस मैट्रिक्स में से, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कंप्यूट कराते हैं, ये तो हो गई कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया कोवेरियंस वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हमने क्या करा है, np पे हमने फंक्शन कॉल करा दिया कोवेरियंस। फाइन, और इसके अंदर आप x और y दोनों वेरिएबल्स डाल दो, और इसके बाद आप क्या पास करोगे, वैल्यूज़। फाइन, 0 ऑफ 1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोवेरियंस की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो बेसिकली सेम प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। नाम चेंज कर देते हैं, कोवेरियंस वैल्यू। क्लियर, और बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं कोवेरियंस वैल्यू। फाइन, इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो कोवेरियंस की वैल्यू क्या है, हमने क्या मेंशन करा था, 0 ऑफ 1। तो 0 मीन्स 0 के 0 पे 7.5 है, 0 के 1 पे क्या है, -7.5, तो उसने वैल्यू क्या प्रिंट करा दी, -7.5। ठीक है, अगर आप यहीं पे इंडेक्स दे दोगे 1 का 1, फाइन, 1 ऑफ 1 मीन्स 1 के 1 पे वैल्यू क्या है, क्लियर। तो 1 के 1 पे आपकी वैल्यू क्या है, दिस इज 1, फाइन।
1 का 0 है, ये 1 ऑफ 0 एंड दिस इज़ 1 ऑफ 1। ये एरेज में हमने कवर किया था ये प्लेस वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो आई होप स्टूडेंट्स को रिमेंबर होगा। तो कोवेरिएंस के अंदर से वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको उसका इंडेक्स नंबर रेफ़र करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है, इन दिस कोड फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड 2 एरे, क्लियर। पहले हमने एक एरे लिया x, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया, देन y लिया, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया, फाइन। सो उसके बाद हमारी जो मैट्रिक्स आई है वो 2 × 2 की आई है, जो हमने यहाँ से मैट्रिक्स ऑब्टेन करी है। उसके जो एलिमेंट्स आए हैं वो मैंने आपको दिखाया था, आपकी जो मैट्रिक्स थी 2 × 2 की थी, क्लियर स्टूडेंट्स। सो उसके बाद हमने क्या करा है, दोनों मैट्रिसेस, पूरी मैट्रिसेस को प्रिंट कराया। उसके बाद उस मैट्रिसेस में से मैंने क्या करा, उस वैल्यू को फैच करा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को फैच करा है। तो यहाँ पे हमने लर्न करा कोवेरिएंस कैसे निकालना है, और कोवेरिएंस में से एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे फैच करना है, क्लियर। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी, हाउ टू कंप्यूट कोवेरिएंस ऑन अ 3D एरे, फाइन। अभी जो हमारा एरे था वो 2D था, अब अगर हमें कोवेरिएंस कंप्यूट करना हो 3D एरे में तो कैसे करेंगे, कंप्यूट कोवेरिएंस ऑफ अ 3D एरे। क्लियर। तो अब हमें सेम ये तो करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा पैकेज np। इसके बाद का ये सारा प्रोग्राम मैं इरेज कर देती हूँ। देन हमने क्या करा, x वेरिएबल लिया, इसके अंदर ही आपने सपोज यहाँ पे वेरिएबल्स भी चेंज कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, क्लियर। इसके बाद जब हम अगर एक ही के अंदर मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं तो हमें एक और ब्रैकेट लगाना पड़ता है। देन आई एम टेकिंग 6 7 8 9 10, then one more I am taking over here, 11 12 13 14 15, any random values I have taken here, okay। so this is all about my 3D array। अब हमें करना क्या है, सेम काम जो हमें करना है, प्रिंट करेंगे हम, क्या प्रिंट करेंगे हम, कोवेरिएंस। सो np डॉट कोवेरिएंस और उसमें हम डाल देंगे x, क्लियर। देन सेव दिस प्रोग्राम एंड रन। सो हमारे पास जो मैट्रिसेस कंप्यूट होके आई है वो आपको दिख रहा होगा, 2.5 आया है ऑल, क्लियर। तो इस तरीके से मैट्रिसेस आपकी जो है वो पता लगती हैं। आपका जो कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस यहाँ पे आपका क्या है, आप अगर वैल्यूज़ देखोगे अभी तो यहाँ पे सबकी ही इक्वल आ गई हैं, ठीक है, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे नहीं होंगे कि जहाँ पर सबकी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। ये हमें अलग अलग उसमें देखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ क्या आती हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, क्लियर, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस मेड करे हैं और देन सेव करके रन करते हैं, क्लियर। तो बेसिकली अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपकी जो इस वाले इंडेक्स की वैल्यू है और इस वाले इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, कोवेरिएंस है, फाइन। सो हम कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ 3 1 एंड 1 3 आर कोवेरिएंस इन द कोवेरिएंस मैट्रिसेस, क्लियर। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो ये दोनों क्या है, कोवेरिएंस वैल्यूज हैं, क्लियर। ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो ऐसा लग रहा था ना सारी ही वैल्यूज इक्वल आई हैं, तभी मैंने डिजिट्स में चेंज करा, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आती है तो वो क्या होती है, कोवेरिएंस मैट्रिसेस होती है, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा अब, जो कि है दैट इज कोरिलेशन, फाइन। सो कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफाइंस स्टैटिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू data sets and their interdependence,
The function which we will use with correlation, that is correlation coefficient. Fine. The function which we will use with this correlation is this basically correlation coefficient. And now I am going to show you the practical implementation of this correlation. So before seeing the practical implementation, just understand the term correlation. It's also referred to the mutual relationship or association between quantities. देखो अब बिजनेस के अंदर होता क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. देखो जैसे एक एग्जांपल है, आपकी सेल अगर इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? सपोज आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको उसकी मार्केटिंग के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा उसके एडवर्टीजमेंट पे. फाइन. सो सेल्स आपकी इंक्रीज होगी जब हम मार्केट डिपार्टमेंट जो है वो स्पेंड किस पे करेगा, टीवी एडवर्टीजमेंट्स पे करेगा. फाइन. जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं. देन एक कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर्स एवरेज परचेज अमाउंट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट में डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू दैट कस्टमर. अगर कोई भी कस्टमर है वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता है, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट से क्या क्या परचेज करेगा, ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. फाइन. कई बार कस्टमर क्या करता है, जहाँ कंपेयर करता है साइट्स पे, जहाँ उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा या कुछ ऑफर्स होंगे, वहाँ से वो बेसिकली परचेज करेगा थिंग. ठीक है. तो कोरिलेशन क्या होता है, इट्स अ स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेशनशिप्स एंड सब्सिक्वेंटली बिल्डिंग बेटर बिजनेस एंड स्टैटिकल मॉड्यूल्स. देखो आपस में चीज़ें ना कोरिलेटेड होती हैं, कि आप अगर इस पर्टिकुलर थिंग्स पे चीज़ें स्पेंड कर रहे हो, तो जैसे हमने अभी बोला प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हम अपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे लेके चलेंगे कि उसके बाद भी हमें प्रॉफिट मिल जाए, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसके बाद भी हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिल जाए. फाइन. तो वो सारी चीज़ें हम आपस में कोरिलेट करेंगे. अब इस सिग्निफिकेंस क्या है इस कोरिलेशन की, कोरिलेशन कैन हेल्प इन प्रेडिक्टिंग वन क्वांटिटी फ्रॉम अनदर. एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रेडिक्ट करते हैं दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में. देन कोरिलेशन कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप, कि नॉर्मली जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी प्रेजेंस क्या है. Then correlation is used as a basic quantity and foundation for many other modeling techniques. अब जो correlation है इसको हम प्रैक्टिकली अगर कंप्यूट करेंगे तो कैसे कंप्यूट करेंगे वो देख लेते हैं. तो उसके लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग विंडो पे आते हैं और यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं. इसमें हमें अब क्या परफॉर्म कराना है, कोरिलेशन. So we can write correlation over here. Fine. Now we have imported an numpy as np. Afterwards you have to create array. Same I am taking x, then I have to write np dot array, and in this np dot array I will take some values. For example, I am taking 1000, 1200, then 1600. Fine. So this is my first array, and we can print this particular array. Now I am taking the other array, that is np dot array. Fine. और इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ ले लेते हैं वो हम कुछ भी ले लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया 130, 120 and 110, something like that I have taken. Or let me just do these changes, and basically now I'm going to print this array also. Afterwards what I will do, I will write print np dot correlation coefficient. Fine. Then I will mention the variable names, that is x and y. Save this particular program and run it. Let's see what is the value. आप देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वैल्यू आपस में क्या है, को रिलेटेड है.
फाइन। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, अभी ऑब्टेन करी है हमने कोरिलेशन। कैसी वैल्यूज आई हैं, दोनों की दोनों जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, नेगेटिव वैल्यूज आई हैं। फाइन। सो दिस इंडिकेट इनवर्स कोरिलेशन। फाइन। अब इनवर्स कोरिलेशन में क्या सिग्निफाई करता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है फर्स्ट आइटम का, फाइन, जो कि हमने क्या लिया, एक्स लिया है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड आइटम वाई, ऑन द अदर हैंड डिक्रीजेज। दैट मीन्स अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, जैसे आपका डिमांड एंड सप्लाई होता है ना। सो अ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 and 1। सो ये जो वैल्यू क्लोजर होगी किसके होगी, -1 और 1 की होगी। द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप द क्लोजर टू 0 वीकर इट इज। तो दैट मीन्स क्या है हमारा, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। हमारी वैल्यूज जो होंगी वो किसके बीच में होंगी, सिर्फ -1 और 1 के बीच में होंगी। देखो अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका क्या मतलब है, इट मीन्स वन वेरिएबल इंक्रीज सो अदर डज द अदर। एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कब, जब आपकी कोरिलेशन की जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव नहीं। अगर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो एक वेरिएबल का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का भी प्राइस इंक्रीज होगा। एंड अगर जो आपकी वैल्यूज हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो आपका, वो नेगेटिव आता है, जैसा इस केस में हमारा क्या है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो अदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर जो आपका प्राइस है वो एक आइटम का वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे आइटम का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कब होगी, जब आपका बेसिकली जो आपके when the value is closer to 0 then the weaker it is also। so सिंपल है, दोनों प्राइस इंक्रीज कब होंगे, जब वैल्यू पॉजिटिव है, और डिक्रीज कब होंगे, जब वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। कौन सा डिक्रीज होगा, एक का इंक्रीज होगा और दूसरे का क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसा इस केस में मैंने आपको बताया, एक्स का प्राइस जो है इंक्रीज होएगा तो वाई का डिक्रीज होगा। बट अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव आती तो उन दोनों का जो कोरिलेशन आता वो क्या होता कि दोनों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। फाइन। So this is all about the correlation, students. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. Like this particular video and subscribe the channel and share it with your friends.